फिएट में हमने हर कार को बनाया है जुनून के साथ, क्योंकि जुनून से जादू है। अब जादू सिर्फ 3,87,000 रुपए से। क्या हुआ जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं पता कि कहां और कैसे करें इन्वेस्ट? आप फिर भी जीत सकते हैं लाखों के नाम सिर्फ CNBC आवाज पर, वो भी हर घंटे। बस 15 अक्टूबर को इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। इन्वेस्टर महाकुंभ 15 अक्टूबर को सिर्फ CNBC आवाज पर। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं इन्वेस्टर महाकुंभ, जिसमें हमारा मैसेज एक्सपर्ट लोगों से बात करके, देश के जो विशेषज्ञ लीडर हैं उनसे बात करके यही है आपके लिए कि समृद्धि की यात्रा कभी भी शुरू कर सकते हैं आप। बाजार में मौका है पैसा लगाने का, निवेश के तरह तरह के ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। उसमें वापस आपको अगर नहीं है अभी तक तो आने का, और जिनको डर है जो पहले आए थे उनको वापस लौटने का। अभी हम चलेंगे मोइली साहब से, एक सवाल पूछेंगे। मोइली साहब, हम जितने लोगों से बात करते हैं उसमें एक ही शिकायत है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेकिन पॉलिसी के फ्रंट पर सरकार बड़ी सुस्त है। डाइवेस्टमेंट क्यों डरना चाहिए, आगे बढ़ करके करें। FDI रिटेल क्यों रोकना चाहिए, कर दें। सब्सिडी हटानी है, हटा दें। एक बार आ जाए बोझ इन्फ्लेशन का, लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्टोरी हिंदुस्तान की सुधर जाएगी। पॉलिटिकल लीडरशिप पॉलिसी इनर्शिया में बैठी हुई है। सर, कोई उम्मीद आप हमको दे सकते हैं कि सचमुच अगले कुछ आने वाले हफ्तों में, महीनों में कोई बड़े कदम उठाएंगे आप लोग? Yeah, I do agree with you. The policy thrust, particularly from the government, is quite important, with regard to the corporate governance and also certain policy decisions. I am holding within a month the Investors Week all over the country, particularly one category is in the metropolitan cities, another category is the next, progressing cities. And so that, we will have all aspects of the investor panorama, and I would like to that I am going to have a preliminary meeting of all the stakeholders, including the FICCI, CII, and all the professional institutes. I think within 10 or 15 days to work out the strategy how we can make this Investors Week celebrations are the real celebrations, and which will get real value to the shareholders area. And I think we are going to do that, so that I think wherever it's necessary to dismantle certain bureaucratic hurdle or whatever it may be, we will not hesitate to do that. Of course, the first step will be the new company bill, which is likely to come to the cabinet within a week or so, or no sooner that comes, I am going to present that bill before the winter session of the parliament in the first half. So apart from that, whatever emerges out of the seminars or the real workshops which we are going to hold, and with regard to the real depositors or the shareholders problem, and also to really cash on the growth story of the stock market, and also the real the value to be given to the shareholders, it's a matter of highest priority as far as the government is concerned. So we are working out. There are few things which I would like to say, like the competition policy we are going to evolve. Competition policy is one policy which is going to be the second bang great revolution in the economic field, particularly after 1991. So that means to say that the competition policy will give the real value to the investors, and also provide that kind of a platform which will definitely provide many solutions, like the inflation. For example, the inflation can come down to 50% less, if the competition policy is in real place. So competition policy is likely to be announced within a month or two, and we are going to have this implemented and ensure that it percolates in every ministry and it percolates in the every segment of the economy of the country. बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली मोइली साहब ने कई खबरें दे दी हैं CNBC आवाज के दर्शकों के लिए। एक तो इन्वेस्टर्स के लिए वो काफी कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं, और साथ ही ये कंपटीशन पॉलिसी भी लाने वाले हैं। लेकिन चित्रा, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहले तो ये था कि
हमें सिर्फ हिंदुस्तान के बाजारों को देखना है, लेकिन अब दिन भर एनएसई देखें और शाम को रात को डाउ और नैस्डैक देखना पड़ता है। दुनिया भर के बाजारों में इतनी जबरदस्त ग्लोबल वोलेटिलिटी है। ऐसे में एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए पूरे विश्व भर की जो ये चिंताएं हैं, वोलेटिलिटी है, उससे अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए, हेज करने के लिए किस तरह के उपाय, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट, प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं? ये जो बात आप निकाले हैं ये तो बिल्कुल सही है कि इट इज नाउ एन इंटीग्रेटेड वर्ल्ड, ग्लोबल फैक्टर्स एवरीवन हैज टू ट्रैक। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो या 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो, इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। तो ये वॉलेटिलिटी हमें मैनेज करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे आपने बताया, कंट्री रिस्क इटसेल्फ पीपल में वांट टू डाइवर्सिफाई। तो ये हिसाब से आप देखेंगे तो यही हमारी प्रयास है कि ग्लोबल इंडिसेस लाएं। ग्लोबल इंडिसेस लाने से हमें हमारे पोर्टफोलियो में इंडिया रिस्क, अदर कंट्री रिस्क ऐसे डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। सेकंड, इफ यू वांट टू हेज the volatility in the markets, there are products today available worldwide which are volatility indices, जैसे VIX बोला जाता है, CBOE VIX, which is the most popular. So these are little more sophisticated products. They need a little more education, they need a little more training, but products are available to hedge volatility as well. Third, if you are looking at hedging currency, today we have currency products as well available on the exchange through the currency options, etc. So there are a whole range of derivative products that are available to hedge underlying risk. बिल्कुल, चित्रा जी ये बता रही हैं कि आपके लिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स जैसे प्रोडक्ट दुनिया के बाजारों में पैसा लगाने के लिए, जिसको हम कहते हैं छोटा निवेशक, आप जैसे लोगों के लिए भी ये बाजार खुला है। थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा होमवर्क चाहिए और अब आप ये छलांग लगा सकते हैं। आइए अगला सवाल लेते हैं सिन्हा साहब से। शेयर बाजार में सुरक्षित निवेश करने के लिए सिन्हा साहब, निवेशकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम इस बात को मानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है, सुदृढ़ है और आगे भी रहेगी। इस माहौल में अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में हमारे पूंजी बाजार भी अच्छा करेंगे। सेबी की जिम्मेवारी ये है कि वो देखे कि रूल्स ऑफ द गेम फॉलो हो, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सके, कोई किसी के साथ मिस सेलिंग नहीं कर सके, और हम एज एन ऑनेस्ट रेफरी देखते रहे कि बाजार ठीक से चल रहा है। अगर हम इतना कर सके तो मुझे उम्मीद है कि बाजार बहुत अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म। धन्यवाद सिन्हा साहब। फिलहाल हमारा ये जो पहला सत्र है महाकुंभ का, यहाँ समाप्त होता है। हम अपने सारे मेहमानों को धन्यवाद देना चाहेंगे और दर्शकों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि ये आपको वास्तविक मदद हो सके। दिन भर की ट्रेडिंग जो हम रोजाना पूरे साल 24 घंटों करते रहते हैं, उससे हट करके आपके सीरियस समृद्धि की यात्रा को शुरू करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के उपाय बताने के लिए आज पूरे दिन हमारे साथ करीबन 40 से 50 मेहमान, देश के बड़े लोग आ रहे हैं। आज आपको अपना सारा काम छोड़ करके CNBC आवाज देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी वास्तविक मदद है। आपके पास बचत का जो पैसा है, उससे आप पैसा कैसा कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, ये बताने के लिए हमारा ये आयोजन है। फिलहाल ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हमारे दूसरे दौर में जुड़ेंगे हमारे कुछ और नए मेहमान। आप सबों का धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। को प्रेजेंटेड बाय ट्रस्ट लाइन, प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड दिव्या भास्कर। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचा रहे हैं। मत पूछो जी।